Hello students, now see page number 359. So I was telling you about the computing cloud. It is of two types, private cloud and public cloud. Clouds are actually when we do computing over internet. इसमें storage होती है, processing होती है, that is called cloud computing. So private clouds means which belongs to a particular organization. And public cloud refers to a common cloud service made available to multiple subscribers, means anyone is free to use it. The cloud resources are owned and operated by a third party cloud service provider and delivered over the internet, means maintenance belongs to a particular organization but all can use it, can access it, can store. In a public cloud, you share the same hardware, storage and network devices with other organizations that use the same cloud called cloud tenants. Tenants क्या होते हैं? Which are not permanent, okay, which are temporary. तो जैसे अगर हम कोई भी, suppose if I am putting my data on Google Drive, Amazon Google Drive, iCloud, so these are public clouds, means we can put our data on it, but to maintain it it's their responsibility. And we are the tenants, we have just taken the place to store. Public cloud deployments are frequently used to provide web-based mail, online office, application storage and testing and development environment. जैसे public clouds में जितनी भी services होती हैं on which we can do computing, storing, processing, so we are just the tenants and they have provided us such a facility so that we can access their space, their cloud. Microsoft Azure, Google Drive, Amazon Cloud Drive, iCloud, etc. are examples of public cloud. तो Amazon एक तरह से प्राइवेट भी है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Amazon, ठीक है. और पब्लिक क्यों है? बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड अ स्पेस टू ऑल सो दैट वी कैन पुट आवर डाटा ऑन इट. The combination of public and private, it becomes hybrid. And the clouds used by a group of related organizations is called the community cloud. Hybrid में क्या होता है? Mixture, which is also known as public cloud and private cloud. There are four type clouds actually: private, public, hybrid and community. Hybrid is a combination of both. And the clouds which are used by group of related organizations, उसको हम कहते हैं community cloud. Community cloud are actually the clouds which have the same background. ठीक है. अब जैसे बैंक हैं, इफ ऑल द बैंक्स आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, चाहे वो SBI बैंक हो, रिजर्व बैंक हो, PNB हो, OTC हो, अगर ये सारे बैंक्स, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? बैंक, ओके, दे ऑल बिलोंग टू द बैंक बैकग्राउंड. लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सारे बैंक्स जब उसी क्लाउड में अपने प्रोजेक्ट को कंप्यूट करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो वो कम्युनिटी क्लाउड कहलाएगा. बिकॉज देयर इज अ ग्रुप ऑफ सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस विच बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड. नाउ नेक्स्ट इज ग्रिड कंप्यूटिंग. ग्रिड्स मीन्स होता है, लेट मी शो यू ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है. ग्रिड कंप्यूटिंग में एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का. सी दिस डायग्राम, दिस इज ग्रिड कंप्यूटिंग. तो आप इस कंप्यूटर को देख सकते हो, इसमें बहुत सारे सर्वर्स हैं, क्लाइंट्स हैं. ये देखिए ग्रिड सर्वर है. अगर हम किसी भी नेटवर्क की बात करें तो उसमें एक सर्वर भी हो सकता है एंड देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स, ओके, एंड मल्टीपल क्लाइंट्स आर देयर. तो दिस इज कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग, ओके. तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग. It is a distributed computing system formed by a network of independent heterogeneous computers in multiple locations. Heterogeneous means different types of computers. It's not like that only laptop can connect. There can be a connection of different type of hardwares and softwares in multiple locations. If you know, if suppose government is working on a particular project or scientists are working on a research, doing research on something, they belong to different parts of the world. अगर आपको ये पर्टिकुलर रिसर्च चल रही है जिससे पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा, जैसे कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो XYZ एनीथिंग, तो दे आर वर्किंग फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड what is the way? That is only grid computing.
तो सबके अपने अपने सर्वर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, पर उनके थ्रू कनेक्शन के थ्रू वो काम कर रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. Grid computing links disparate low-cost computers into one large infrastructure. Harnessing means होता है to bring in use or to control the energy of something in order to produce. मतलब किसी भी चीज़ को use में लाना. Their unused processing and other compute resources. A computational grid is a hardware and software infrastructure that provides dependable, consistent means होता है changing. Pervasive means that is present in all parts of something. That is present in मतलब जो हर जगह present है उसको हम pervasive कहते हैं. Inexpensive means cheap. Access to high-end computational capabilities. The grid brings together computing resources, PCs, workstations, servers, storage elements, and provides a mechanism to access them. तो computational grid क्या है? Which is a combination of both hardware and software. Its work. What is the main objective? The main objective is to provide dependable, consistent means changing environment. Pervasive means which presents in all parts, everywhere. Inexpensive means cheap way to access high computational capabilities. You know, इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है. अगर हम हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो हम उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग मच ऑन दैट. हमें अलग से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वी हैव वन प्रिंटर इज इनफ. द सेम इन ग्रिड कंप्यूटिंग. यू नो, कंप्यूटिंग इज द बेस्ट वे टू मिनिमाइज द कॉस्ट. किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इफ टू मेनी पर्सन्स आर involved in that project, it minimizes the cost because they need not to purchase anything individually. By sitting at their place, they can access their computational capabilities. The grid links together computing resources, PCs, personal computer, workstation, हम कहते हैं node को, computers को, which have participated in computer. Single computer cannot be workstation, but if it is connected with network, that becomes workstation. Server, you know, it is a powerful computer whose job is to fulfill the request of the clients. Storage elements which help us to store the data and provides a mechanism to access them. Users or client applications. We are the users and we use so many client applications to access. जैसे suppose if you want to access any information from internet, which web client you use? Web browser. Web browser क्या है? Web browser एक client है, software है, which help us to access the information. जैसे अगर आपको suppose किसी के कंप्यूटर पे लॉग इन करना है, by sitting at your place you want to log in on anybody's computer. तो how will you log in? With the help of TeamViewer. You need a remote login software. तो वो भी gain resources, processors, storage, data application and so on are needed with little or no knowledge of where these resources are located or what the underlying technologies, hardware, operating system and so on. So they just want to tell you कि as we are the users, okay, we are accessing so many computing resources. Maybe we have a knowledge about that or not. So in this way, grid computing is playing a very important role in distributing computing, which involves coordination and sharing of geographically distributed network computation services. Means the persons who are located at different places in the whole world, they are also taking the advantage of that. Grid computing is best suited for applications in which without the need to communicate between processors. In grid computing, each computing task is broken down into smaller pieces and distributed through the available computing resources for execution. Grid computing में क्या होता है? जितने भी कंप्यूटिंग टास्क होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. दीज पीसेज आर प्रोसेस्ड इन पैरेलल. मीन्स वो काम क्या होता है, अब सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. हमने सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सपोज 100 पर्सन्स आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द सेम प्रोजेक्ट. So what we can do? We can divide that project into multiple parts and can provide to the different persons, those who are working on that project.
So what will happen? They all will keep working on those little parts simultaneously. अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के पर्सन्स के अकॉर्डिंग स्मॉल पीसेस में वर्क को डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, वो सारे लोग उस काम को कर रहे हैं अपनी अपनी जगह बैठकर, तो वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है जिसके मैंने इतने पीसेस किए हैं, इतने उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं उस पर एक साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा काम तो एक साथ हो गया ना, वो सारों को हमने अलग अलग काम डिवाइड कर दिया। तो जो काम एक पर्सन 100 डेज में करता वो 100 लोग एक दिन में कर देंगे, तो वो काम क्या होगा, पैरेलल में चलेगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रेड कंप्यूटिंग। ओके, अगर हम किसी काम को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो अपनी अपनी जगह बैठ के उसको करेंगे, तो सारा काम पैरेलल में होगा। तो ऑल द 100 पर्सन्स आर वर्किंग इन पैरेलल। तो इन दिस वे इट विल टेक स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द जॉब. In general, a grid computing system requires at least one computer, usually a server, which handles all the administrative duties for the system. तो इसके लिए कम से कम हमें एक कंप्यूटर चाहिए. A network of computers we require, क्योंकि अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, persons are involved from different parts of the world, so they are all connected with a network. A collection of computer software called middleware, और हमें softwares चाहिए जिस पे वो work कर रहे हैं. Now there are two common types of grids, computational grid and data grid. अब computational grid में क्या होगा, we need computing devices. Compute grids allows you to take a computation. Optionally, computation means calculation. Optionally split into multiple parts and execute them on different grid nodes in parallel. जो मैंने आपको भी example दिया कि अगर एक project पे that project is very big and multiple persons are working on it from different parts of the world, and if we have divided that project into smaller pieces, so all the persons are working in parallel, so it will take a smaller amount of time. The obvious benefit is that your computation will perform faster. तो जो काम को 100 दिन लगेंगे वो आपका काम 100 लोगों ने मिलकर एक दिन में कर दिया, so it becomes very fast. As it now can use resources from all grid nodes in parallel, because सारे काम parallel में होंगे. Some compute grid vendors are GridGain, Professional Open Source, JPPF. तो ये कुछ vendors जो होते हैं जो इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, जिनको हम शॉपकीपर्स कहते हैं. डाटा ग्रिड प्रोवाइड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट डाटा स्टोरेज. ये डाटा स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं, डाटा डिस्कवरी, डाटा हैंडलिंग, डाटा पब्लिकेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एक्चुअली. ठीक है, डाटा ग्रिड में क्या होता है, उसमें सारा फोकस डाटा पे होता है. डाटा को स्टोर कैसे करना है, डाटा को जनरेट कैसे करना है, हाउ विल बी डाटा विल बी हैंडल, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा उसको स्टोर करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए. पब्लिकेशन मीन्स डाटा को हमें प्रोवाइड कैसे करना है पब्लिक को. मैनिपुलेशन मीन्स हम उस डाटा को, इतने बड़े डाटा को कैसे मॉडिफाई किया जाए, और मॉडिफाई करना ईजी नहीं होता. अगर हम बैंक्स को देखें तो उनके मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ डे में होते हैं. ठीक है, और हर ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ही आप मनी विड्रॉ करते हो, विद इन अ सेकेंड यू रिसीव अ मैसेज ऑन योर मोबाइल फोन, उतने अमाउंट आप पे डिडक्ट होगा. तो उस टाइम पे सिर्फ आप नहीं, millions of customers from all over the world are doing the transactions, withdrawing the money or depositing the money, but there cannot be a single error. अगर आपने, कई बार क्या होता है, हम स्वैप करके पेमेंट करते हो, वो पेमेंट हमारे अकाउंट से तो डेबिट हो गया बट उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो यू कैन इमेजिन क्या होगा. बट दिस नाउअडेज कैन बी इजी. तो दिस इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन. तो जो डाटा हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इतना बड़ा, तो उसको मेंटेन करना इज नॉट इजी. इन वेरियस हेटेरोजेनियस डाटाबेस, हेटेरोजेनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस. अब सपोज आप MySQL यूज करते हो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि नेक्स्ट पर्सन इज यूजिंग द सेम डाटाबेस. हो सकता है वो ओरेकल यूज करता हो, दूसरा एक्सेल यूज करता हो, कोई बेस यूज करता हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो, दिस ग्रिड इज नॉट वेरी इजी. पूरे वर्ल्ड में आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनका हार्डवेयर अलग होगा, उनका प्लेटफॉर्म अलग होगा, सॉफ्टवेयर अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनका जो काम करने का तरीका है, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट
it's going on, it is happening, it is managing easily. So डाटा, इसके लिए कौन से डाटा वेंडर्स होते हैं? JBoss Cache and Hcache. In this way, this is called grids. Grid computing is different from cloud services, where clouds provide services typically by a single vendor. Grid computing focuses on the integration. अच्छा, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है? एक सिंगल वेंडर होता है. अब जैसे गूगल ड्राइव आप यूज़ करो तो वो सिर्फ गूगल को बिलोंग करता है, किसी और वेंडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बट ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है. मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. इट फोकसेस ऑन द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन of resources located within different organizations to cater to a common application. ठीक है. अब जैसे बैंक्स हैं, सारे बैंक्स अगर किसी पर्टिकुलर रिसर्च पे या काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड तो सेम है, लेकिन उनका जो मैनिपुलेशन है, जो उनका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्लेटफॉर्म, दैट विल बी डिफरेंट. तो इन दिस वे हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है. तो इट इज़ नॉट टू ईजी. रिमेंबर, ये सब इजी नहीं होता है करना. वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल डैट. नाउ नेक्स्ट, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व फॉर अ कॉमन एप्लीकेशन, एंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इज देयर. तो ग्रिड कंप्यूटिंग आई थिंक इट इज मोर डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, IaaS cloud service, a vendor rents the required infrastructure to the users, but in grid computing, multiple computing nodes would to be joined or integrated together to work upon some common computational problem. ठीक है. अब क्लाउड सर्विस में क्या होता है? वेंडर हैं, जो जैसे गूगल है तो वो वेंडर है, तो उसके लिए वो कुछ चार्ज भी कर सकते हैं. अमेजॉन है, दे कैन चार्ज समथिंग. लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है. इसमें मल्टीपल नोड्स होती हैं जो एक साथ काम करती हैं एक कॉमन प्रॉब्लम में. ठीक है. लेकिन उनका क्या है? वो डिफरेंट होते हैं. When multiple nodes are joined to form a grid, इसमें मल्टीपल नोड्स होती है और कंप्यूटर और क्लाउड्स में वन. A special type of grid software called middleware is needed, which implements a distributed processor architecture and uses the resources of individual node in optimum way. मैंने आपको बताया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग होते हैं, तो कितना मुश्किल होता है मैनेज करना. तो इस ऐसे कामों के लिए ग्रिड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है. अभी हमने ऊपर 2 ग्रिड सॉफ्टवेयर्स पढ़े, तो वो उस पर काम करते हैं. मिडिलवेयर ग्रिड सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी चाहिए. पूरे वर्ल्ड में आप एक दूसरे से काम कर रहे हो, एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं. रिसोर्स मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन. तो इन सबको सॉल्व करने के लिए मिडिलवेयर का यूज़ होता है. मिडिलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो एक मिडिल मैन का काम करता है. ठीक है. अगर इधर से कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इसको सॉल्व करेगा, उधर से कोई प्रॉब्लम होती तो वो दोनों के बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है. देयर आर मैनी सच सॉफ्टवेयर अवेलेबल दैट हेल्प बिल्ड ग्रिड्स फ्रॉम मल्टीपल नोड्स. तो इन्होंने आपको कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बताए हैं. देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. Means of utilization, allocation of multiple servers onto a single application. ठीक है. ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है? बहुत सारे सर्वर्स का यूज़ होता है एक काम पे. और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर्स, वन सर्वर टू कंप्यूट सेवरल टास्क. जैसे गूगल है तो गूगल एक ही सर्वर है ना, बट इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ मल्टीपल वर्चुअली. इसी को कहते हैं वर्चुअल. एक मशीन है, एक सर्वर है, बट वो प्ले कर रही है रोल मल्टीपल का, क्योंकि आप गूगल से कुछ एक्सेस कर रहे हो, उसी पे टाइम मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आर ऑल्सो एक्सेसिंग. ओके. तो इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ वर्चुअलिटी. पर ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है. ठीक है. ग्रिड कंप्यूटर में हम बहुत सारे सर्वर्स का और मशीन्स का यूज़ करते हैं सिंगल एप्लीकेशन. टिपिकल यूसेज पैटर्न, टिपिकल यूज फॉर जॉब एग्जीक्यूशन, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर अ लिमिटेड टाइम. इसमें क्या होता है? ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. बट वो सर्विस ओरिएंटेड होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन पर्पस क्या है? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो स्टोर कर सकें, कंप्यूट कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें. ठीक है. जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका गूगल ड्राइव आ गया, अमेजॉन ड्राइव आ गया, तो ये सब हमें हेल्प करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. लेकिन इसका काम है एप्लीकेशंस. टास्क सिंगल एप्लीकेशन, उसमें मल्टीपल सर्विसेज होती हैं.
अब गूगल से हम कितनी सारी सर्विसेज लेते हैं, उसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, ओके, फॉर्म्स बना सकते हैं, सो मैनी थिंग्स आर देयर, बट इन ग्रिड कंप्यूटिंग ओनली वन। कंप्यूटेशन सर्विस, मैक्सिमम कंप्यूटिंग फॉर वन एप्लीकेशन, और उसमें ऑन डिमांड, वो डिपेंड करता है इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटिंग होती है और उसमें डिपेंड करता है सर्विसेज पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम which spans across geographically distributed sites and lack central control. It normally contains heterogeneous मतलब इसमें different types of resources, hardware और software का यूज़ होता है, ठीक है। एक्सेस और सेंट्रल कंप्यूटर, इसमें सिर्फ एक सिंगल। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस तरह का लेआउट है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ होता है, और क्लाउड कंप्यूटर में ओनली वन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सर्वर, जैसे गूगल, अमेजॉन, इनका एक सर्वर है, बट ये वर्चुअलाइजेशन की तरह प्ले करते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन ऑफ डाटा एंड कंप्यूटिंग, इसमें वर्चुअलाइजेशन किसका है, डाटा का, सबको डाटा अवेलेबल है, ठीक है। डाटा इज केप्ट एट वन प्लेस बट प्रोवाइडेड टू अवेलेबल टू ऑल। इसमें वर्चुअलाइजेशन किसका है, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एक है, सॉफ्टवेयर एक है, बट accessible to all. Example